Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my video is the middle cranial fossa. जैसा कि पिछली वीडियो में हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम मिडिल क्रेनियल फोसा के कुछ इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स एंड द बोन्स दैट फॉर्म द फ्लोर एंड द रूफ ऑफ द फोसा उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. This butterfly-shaped cavity that is present in between the anterior and posterior cranial fossae is known as the middle cranial fossa. Middle cranial fossa की जो anterior boundary है that is basically formed by the posterior border of the lesser wing of phrenoid lateral sides पे, और बीच में हमारे पास अगर आप यहाँ पे नोटिस करें so this is the sulcus chiasmatis, जो कि मैंने आपको बताया था कि ज्यूगम स्फिनोइडेल के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा ग्रूव होता है एंड दैट ग्रूव इज नोन एज द सल्कस काइस्मेटिस. ऑन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सल्कस we have two processes or two bony projections. These are known as the anterior clinoid processes. So the anterior border is formed by the lesser wing of phrenoid laterally, the sulcus chiasmatis in the middle, and the anterior clinoid processes. सल्कस काइस्मेटिस के बिल्कुल साइड पे अगर आप नोटिस करें ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस यू कैन सी टू कैनाल्स. दीज आर नोन एज द ऑप्टिक कैनाल्स. The optic canal basically connects the middle cranial fossa with the orbital cavity and it transmits the optic nerve, the ophthalmic artery, and the optic nerve is covered with meninges. So basically the second cranial nerve, it passes through the optic canal. Now coming towards the other part, अगर आप सल्कस काइस्मेटिस के पीछे नोटिस करें तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी प्रोजेक्शन नज़र आती है. दिस इज़ नोन एज द ट्यूबरकुलम सेले. Tuberculum sellae basically gives attachment to the diaphragma sella and tuberculum sellae के दोनों sides पे यहाँ पे छोटी छोटी projections होती हैं. These are known as the middle clinoid process. This part give attachment to the diaphragma sella. Diaphragma sella basically forms the roof of this U-shaped cavity. This is known as the hypophyseal fossa or the sella turcica. अगर मैं आपको इसको लैटरली दिखाऊं तो यू कैन ईज़िली सी कि दिस इज़ बेसिकली द पोर्शन. ये जो है ये आपके पास जो एक आपको एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, दिस इज़ द ट्यूबरकुलम सेला, दिस इज़ द हाइपोफिजियल फोसा इन बिटवीन और द सेला टर्शिका जो यू शेप्ड कैविटी है, एंड दिस पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिस इज़ नोन एज द डॉर्सम सेला. सो बेसिकली जो डायफ्रैग्मा सेला है दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरा मैटर जो कि ट्यूबरकुलम सेला पे अटैच होता है और पोस्टीरियरली डॉर्सम सेला पे अटैच होता है, और इट बेसिकली फॉर्म्स अ रूफ ऑफ द फॉर द हाइपोफिजियल फोसा. It just gives the site, it just gives an opening for the hypophyseal stalk to pass through it, और बाकी जो है ये रूफ के थ्रू ये रूफ बन के हाइपोफिजियल फोसा को कवर कर देता है. So this was about the central part of the middle cranial fossa. ठीक है. Now coming towards the posterior border, जो posterior border है आपके पास that is basically formed by the superior margin of this of the petrous part of the temporal bone here. This is the superior margin of or superior border of the petrous part of temporal bone. तो जो इसका anterolateral floor जो है middle cranial fossa का that is formed by the greater wing of phrenoid. Anterolaterally, here lateral parts जो है they are formed by the squamous part of the temporal bone. ठीक है. तो basically anteriorly हमारे पास जो इसका border है that is formed by the posterior border of the lesser wing of phrenoid, the anterior clinoid processes and the sulcus chiasmatis. Posterior border जो है that is formed by the superior margin of the petrous part of temporal bone on both sides. मिडल में हमारे पास डॉर्सम सेला आता है और जो फ्लोर है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेटर विंग ऑफ phrenoid एंड द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. तो अब मिडिल क्रेनियल फोसा के जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक जो है वो इसका सेंट्रल पार्ट है और दो इसके लैटरल पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल पार्ट जैसा कि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास हाइपोफिजियल फोसा होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेला टर्शिका, एंड दिस इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ phrenoid. बॉडी ऑफ phrenoid is specialized into these structures.
तो हाइपोफिजियल फोसा जो है दैट इज़ एंटीरियरली गार्डेड बाय द सल्कस काइजमैटिस एंड पोस्टीरियरली इट इज़ गार्डेड बाय द डॉर्सम सेला। तो डॉर्सम सेला के लैटरल एस्पेक्ट्स पे अगर आपको ये प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं तो दीज आर बेसिकली दी पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। सो वी हैव 3 सेट्स ऑफ क्लिनॉइड प्रोसेसेस, द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, द मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस एंड द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। जो हाइपोफिजियल फोसा है दैट बेसिकली लॉजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड and it is covered superiorly by the diaphragma sella. It only has an opening that allows the pituitary stalk to pass through it. Optic canals जो कि हम already देख चुके हैं, they basically transmit the optic nerve along with the meninges and the ophthalmic artery. Now coming towards the lateral aspect, जो लैटरल एस्पेक्ट है बेसिकली अगर आप इस पे नोटिस करें तो जो लैटरल एस्पेक्ट है उसके जस्ट बिलो द लेसर विंग ऑफ फिनॉइड वी हैव दिस फिशर टाइप स्ट्रक्चर at the junction of the lesser wing of phenoid and the greater wing of phenoid. This fissure-like structure is known as the superior orbital fissure. One is present on each side. तो बेसिकली जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द मिडल क्रेनियल फोसा एंड द ऑर्बिटल कैविटी एंटीरियरली, और इसके थ्रू हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 दैट इज़ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, cranial nerve number 4 that is the trochlear and cranial nerve number 6 that is the abducent nerve, they pass through it. जो सारी nerves extraocular muscles को सप्लाई करती हैं वो इसके थ्रू पास करती हैं along with the inferior ophthalmic vein, the superior ophthalmic vein and some other structures जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जैसा कि frontal nerve, lacrimal nerve and nasociliary nerve. तो these structures basically pass through the superior orbital fissure. Just posterior to the superior orbital fissure, we have a rounded foramen and this is known as the foramen rotundum. Foramen rotundum basically is not connected to the norma bizalis. जो foramen rotundum है, it transmits the maxillary nerve and it is rounded in structure, rounded in shape. Now coming towards the other important foramina, जो ग्रेटर विंग ऑफ फिनॉइड पे जो हमारे पास फोरामेन थे दैट वाज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड द फोरामेन रोटंडम. अब हमारे पास जो स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है उसमें हमारे पास जो फोरामेन्स हैं दे आर दी फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोजम. जो फोरामेन ओवेल है दैट इज़ अ ओवल शेप्ड फोरामेन दैट इज़ प्रेजेंट जस्ट पोस्टीरियरली टू द फोरामेन रोटंडम, और इसके थ्रू हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंडिबुलर नर्व है. Posterior to the foramen ovale we have the foramen spinosum that transmits the middle meningeal artery. These foramina are present on both sides. यहाँ पे भी हम foramen rotundum देख सकते हैं. Then we have the foramen ovale and foramen spinosum. Now just at the junction between the body of phenoid, the greater wing of phenoid and the petrous part of temporal bone, यहाँ पे एक irregularly shaped सा foramen है that is known as the foramen lacerum. Foramen lacerum जो है it basically it is a irregularly shaped foramen जो कि इन दोनों structures के दरमियान present होता है. Now coming towards the petrous part of temporal bone, तो जो petrous part of temporal bone है that is basically a triangular shaped structure. ठीक है, यहाँ पे जो है इसका ये apex है, this pointed portion, this pointed line margin is the superior border of the petrous part. This is the anterior slope or anterior surface and this is the posterior slope or the posterior surface. तो जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का जो सुपीरियर मार्जिन है दैट बेसिकली डिमार्केट्स दी पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. नाउ द पेट्रस पार्ट के जो एंटीरियर सर्फेस है यहाँ पे वी कैन सी अ एमिनेंस. ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्शन नज़र आएगी. दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बिलो एंड दिस इज़ नोन एज द आर्कुएट एमिनेंस. ठीक है, ऑन द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑन बोथ साइड्स यू कैन सी वेरियस इम्प्रेशंस. दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्काइन गायराई ऑफ द ब्रेन. और यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्प्रेशंस भी हैं जो दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मिडल मेनिंजियल वेसल्स ऑन बोथ साइड्स.
एंड दीज इम्प्रेशंस बेसिकली, जैसा कि हम कैल्वेरियम की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि ये इम्प्रेशंस जो हैं वो स्कल कैप के इंटीरियरली भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मिडिल क्रेनियल फोसा। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।